السلام علیکم ناظرین، کوریڈور ریکارڈر میں خوش آمدید۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے جڑی کہانیاں ریکارڈ کرتے ہوئے میں ہوں ملک ظفر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حالیہ مونسون بارشوں نے درجنوں جانیں لے لی ہیں، جس سے بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بن گیا ہے۔ مونسون کی شدید بارشوں سے متاثر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آج سے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اور فشری کو بہتر کرے تو ہمارا ایکسپورٹ $450 ملین کا ہے۔ یہ انشاءاللہ 600-700 ملین ڈالر تو ہم یہیں پہنچ جائیں گے۔ پہلے جنگل دی شتوت دیاں چھڑیاں دا بندا سی، اس تو بعد ہولی ہولی مانگ زیادہ ہوئی، شتوت دیاں چھڑیاں شتوت ختم ہو گیا، یعنی کٹ گیا۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ خبروں پر۔ حالیہ مونسون بارشوں نے درجنوں جانیں لے لی ہیں، جس سے بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بن گیا ہے۔ مونسون کی شدید بارشوں سے متاثر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آج سے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کی فراہمی جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے اور بجلی کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ ریسکیو کا آغاز کر دیا گیا ہے اور روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں شدید بارش سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت نے کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ پر دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات میں تازہ ترین پیش رفت کی اطلاع دی ہے۔ کیس کے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کا کمانڈر ہے اور کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ میں خودکش حملہ بھی دونوں تنظیموں کی مشترکہ دہشت گردانہ کارروائی کا نتیجہ تھا۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور چینی باشندوں اور چینی مالیاتی اداروں کے خلاف حملوں اور حملوں کی وارننگ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے 6 جولائی سے اسلام آباد اور چین کے صوبہ سیچوان کے دارالحکومت چنگتو کے درمیان براہ راست ہفتہ وار مسافر پروازیں شروع کرنے کے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ قومی ایئر لائن کے لیے بیجنگ کے علاوہ چنگتو تیسری منزل ہے۔ مارچ میں PIA کو پاکستان سے چینی شہروں شیان اور گوانگچو کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ توقع ہے کہ نئی براہ راست پروازوں سے پاکستان اور سیچوان کے درمیان تجارتی اور تعلیمی تعاون میں اضافہ ہوگا، جن کے پہلے ہی متعدد روابط ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2021-2022 کے پہلے 11 مہینوں میں خدمات کی برآمد میں 17% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ IT سے متعلقہ خدمات کی برآمد میں اب تک کی سب سے زیادہ نمو نے مجموعی اعداد و شمار کو بڑھا دیا۔ خدمات کی برآمدات میں فنانس اور انشورنس، ٹرانسپورٹ اور سٹوریج، ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور دفاع بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر خدمات کی برآمد کی مالیت جولائی تا مئی 2021-22 کے درمیان $6.318 بلین تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے انہی مہینوں میں $5.367 بلین تھی، اور وزارت تجارت نے 2021-2022 کے لیے $7.5 بلین کے سروسز ایکسپورٹ کا ہدف رکھا ہے۔ پاکستان کے تجارتی عدم توازن میں مالی سال 2021-2022 کے دوران 55.3% کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے درآمدات اور برآمدات کے درمیان مجموعی فرق $48.2 بلین تک پہنچ گیا۔ صرف جون میں تجارتی خسارہ بڑھ کر $4.8 بلین ہو گیا، جو پچھلے سال اسی ماہ میں $3.6 بلین تھا۔ اس عرصے کے دوران پاکستان کی برآمدات $31.8 بلین تک بڑھ گئیں۔ برآمدات میں اس اضافے کے مقابلے میں ملک کی درآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، جو کہ $56.4 بلین سے بڑھ کر $80 بلین تک پہنچ گئیں، جو کہ مجموعی طور پر 42% اضافہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ و محصولات مفتاح اسماعیل نے کنٹری ڈائریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک ADB مسٹر یونگ یی سے فنانس ڈویژن میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے وفد کے ساتھ موجودہ بجٹ اور مالیاتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں اقتصادی انفراسٹرکچر کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے مقرر کردہ محصولات اور ترقیاتی اہداف سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان میں جامع اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے اقدامات پر موجودہ حکومت کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی، چاول اور دالوں پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پیش رفت سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ مالی سال 2022-2023 میں 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی کے لیے 68.22 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔
पाकिस्तान से चावल की बरामदात में माली साल 2021-2022 के पहले 11 माह के दौरान 33% इजाफा देखा गया, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक को 4.4 मिलियन मेट्रिक टन से जायद चावल बरामद किए गए। इस अरसे के दौरान चावल की बरामद से कमाई गई रकम 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रही, जो कि कदर में 23% इजाफा है, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम थी। माली साल 2022 के पहले 5 महीनों में चीन को पाकिस्तान की चावल की बरामदात 277.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तजावज़ कर गई, जो कि साल ब साल तकरीबन 10% ज़्यादा हैं। अवामी जमहूरिया चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स GACC के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान चीन को टोटा चावल फराहम करने वाले बड़े ममालिक में से एक रहा। फिलहाल टोटा चावल, खास तौर पर एरी 6 और एरी 9 और नीम या मुकम्मल पिसा हुआ चावल चीन को बरामद की जाने वाली अहम इकसाम है, जबकि ताजरों को अब भी बासमती और दीगर आला इकसाम को चीनी मार्केट में मुतारफ करवाने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को अगस्त में मई में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर सार्फिन से 9.42 रुपये फी यूनिट की गैर मामूली इजाफी फ्यूल लागत एडजस्टमेंट FCA वसूल करके तकरीबन 19 अरब रुपए के इजाफी फंड्स जमा करने की इजाज़त दे दी है। मई में माहाना फ्यूल लागत एडजस्टमेंट पर बड़ा असर फर्नेस ऑयल और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA से खरीदे गए बिजली के ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को मुतल्लिका वज़रा को हदायत की कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से फौरी तौर पर तफसीली मुलाकात करें और कैपेटिव पावर से चलने वाली सनतों और बरामदी शोबे के लिए मुसाबकती गैस और बिजली के टैरिफ को हतमी शक्ल देने और गैस की बहाली के हवाले से बुध तक कोई हल निकालें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हदायत की कि वो इन फैक्ट्रियों के लिए गैस की फराहमी की लोड शेडिंग पॉलिसी पर नज़रसानी करें, जो उनके कामकाज के लिए सिर्फ अजनास पर इन्हसार करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनतों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने से मुल्क अपनी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेश करने के काबिल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पीर को सूबे में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया। ये इक़दाम मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के यूटिलिटी अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। बलोचिस्तान 750 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी और गहरे पानियों की बंदरगाहों का हामिल है, जो इसे माहीगीरी के लिए एक कुदरती मकाम बनाती है। यहाँ समुद्री ग़िज़ा की बरामद के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक चेन कायम करने की बड़ी सलाहियत है। माहीगीरी के शोबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन शोबे कौन से हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। अगर आप पूरी सी फूड इंडस्ट्री की बात करें, जो सिंध से स्टार्ट होती है बलूचिस्तान तक चली जाती है जीवनी तक, तो यहाँ तकरीबन जो लोग मुंसलिक हैं हमारी सी फूड इंडस्ट्री के साथ, जो फ़िशरमैन हैं, फैक्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, एक्सपोर्ट से मुंसलिक लोग हैं, तकरीबन 20 लाख के करीब लोग जो है ना इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ शोबा है इससे। फिर 20 लाख लोगों के साथ जो है ना उनकी फैमिलियाँ अटैच हैं। तो अगर आप ये देखे जाए तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, हम लोग अपनी एक रिवायती जो माहीगीरी सिस्टम है उसके तहत चले आ रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000, कभी 1500, ये वही रोज़ी है। जैसे जो लोग जुआ नहीं खेलते ये वैसे रोज़ी है। माहीगीरी जुए की तरह है, रोजाना की आमदनी एडवांस में मिलना, लेकिन ये खानदान के लिए वाहिद माली इमदाद है। खुशकिस्मती से गवादर में पैदा होने वाली मछली और केकड़े अपनी मुनफरिद दिलकशी रखते हैं। क्वालिटी वाइज जो है ना, क्वालिटी वाइज गवादर की जो फ़िश है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। चिंदी का रेट 400 रुपया, लोअर का रेट लीचर का 40 रुपया, बांगड़े का रेट आजकल 250 रुपया है। सबसे महंगी मछली कौन सा है? सबसे महंगी मछली सहुआ, केर। और यहाँ से जो सी फूड है वो रिबन फिश है, क्रोकर है, सोल है, रिबन फिश है, कटल फिश है, स्क्यूट है, बड़ी पैमाने में बड़ी क्वांटिटी से वो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना। ज्यादा कीमत की इकसाम को हासिल करने के लिए माहीगीर समुद्र में जाने पर मजबूर हैं, जहां मशीनरी की कमी और खुरदरा समुद्र एक बड़ा खतरा है।
बोर्ड हमारा मुश्किल आता है कि मच्छी ज़्यादा पकड़ेंगे तो बोर्ड कभी डूबते हैं भी, हवा आएगा भी डूबेगा हम। सही है। इधर तो बुनियादी सहूलत है ही नहीं। ये जो लोग मछेरे हैं समंदर से मछली पकड़ कर लाते हैं, इधर ही बेचते हैं कंपनियों के साथ, और कंपनी वाला करोड़पति बन रहे हैं, मछेरा तो वही डब्बे का डब्बे बन रहे हैं। सही है गलत? एक बात ये है, मछली तो गर्मी लग जाता है, एनी टाइम ख़राब होता है, तो फिर कंपनी इसको परसेंट लगाता है 20-30। तो तकरीबन वहाँ से वहाँ इंजन की ज़रूरत है लोगों को। ज़माने में हम अपने ज़माने में दौर में अपने बाप दादा के ज़माने में इस मुल्क में चप्पू और पर्दों से लोग मछलियों के शिकार करता था, तो 1 किलोमीटर भी नहीं जाते थे, तकरीबन यहाँ नज़दीक में। अभी हमारे माहीगीर 15, 20, 30 किलोमीटर में ये छोटा कश्तियाँ वहाँ जाएंगे। इनको हर 1-2 साल के लिए इंजन चाहिए। गवादर के हालिया दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहीगीरों को रोजी कमाने में मदद के लिए 2000 मोटर बोट इंजन तकसीम करने का ऐलान किया। ये मुस्तकबिल में माहीगीरों के काम और जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तो मैं समझता हूँ आज अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, माहीगीरों की बहुत मुश्किलातें हल हो जाएंगे और बहुत अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है माहीगीरों के लिए। और मैं खुशी इस बात की करता हूँ कि आज से 2000 इंजन का ऐलान किया, तो ये गरीब माहीगीरों के लिए ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे इस पे ताला के भी कोई ऐलान हो जाए भी बेहतरी आएगी। आलात की अपग्रेडेशन से माहीगीरों को समुद्री ग़िज़ा को ज़्यादा मौसर तरीके से पकड़ने और उनकी नकलो हमल में लगने वाले वक्त को कम करने का मौका मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान की आबी मसनूआत की बरामद अब भी बुनियादी तौर पर मछली और मछली की बुनियादी प्रोसेसिंग मसनूआत हैं। ये आला मयार का खाम माल थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ही ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान में बड़ी सलाहियत मौजूद है। ये सारी चीज़ें, दूसरा ये है कि अभी तक हम लोग जो सी फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो रॉ की शक्ल में कर रहे हैं, यानी मछली ख़रीदी जाती है, उसको यहाँ फ्रीज़ किया जाता है और आगे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसको हम लोग अभी तक उसकी वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं गए, रेडी टू कुक की तरफ नहीं गए, और उसका जो एडवांटेज है वो दूसरे ममालिक ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम चाइना भेजते हैं अपना रॉ मटेरियल, वो उसको रीप्रोसेस करते हैं, रीप्रोसेस करके उसकी पैकिंग चेंज करके और उसको यूरोप अमेरिका वहाँ भेजते हैं, और वो 4 गुना ज़्यादा कीमत में आगे बेचा जाता है। तो अब अगर हमें एक चीज़ का $1 मिल रहा है तो वो उसका $4 कमाते हैं। तो वो सहूलियात हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, और क्योंकि उसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। और हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग चाहिए हमें जो इसकी एजुकेशन देवे और फिशरी को बेहतर करे, तो हमारा एक्सपोर्ट $450 मिलियन का है। ये इंशाल्लाह $600-700 मिलियन तो हम यहीं पहुंच जाएंगे। चीन की आबी मसनूआत की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने प्राइमरी प्रोसेसिंग को इब्तदाई मरहले से अब डीप प्रोसेसिंग में तब्दील कर दिया है। मिसाल के तौर पर जब हम मछली खाते हैं तो इसके खाल से कोलेजन के अंडे बनते हैं। अंदरूनी हिस्से को मछली के खाने में प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह क्रे फिश के साथ होता है। केकड़े के सिरों को चिटन, अमीनो, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह में बनाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आएँ और जदीद मशीनरी लेके आएँ, ट्रांसपोर्टेशन लेके आएँ, तो हम भी, ताकि हमारे लोग भी, हमारे माहीगीर भी, हमारी फैक्ट्री मालकान भी, एक्सपोर्टर भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। दर हकीकत चीन दुनिया का वाहिद बड़ा माहीगीरी वाला मुल्क है, जहां आबी ज़राअत की पैदावार माहीगीरी की पैदावार से ज्यादा है। चीन के पास 1.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा समुद्री रकबा आबी ज़राअत के लिए दस्तयाब है। अगर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये आला मायार का प्रोटीन पैदा कर सकता है, जो कि 120 मिलियन हेक्टर काबिल काश्त जमीन के बराबर है। समुद्री चरागाह रवायती माहीगीरी को जदीद माहीगीरी में तब्दील करने और अपग्रेड करने का एक अहम जरिया है। पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है? जिस तरह श्रिम्स की फार्मिंग होती है, फ़िश की होती है, क्रैब की भी फार्मिंग होती है, तो हमारे यहाँ फार्मिंग नहीं है। हमारे इधर तो सी कैच जो क्रैब आता है वही आगे जो है ना जाता है, और बड़ी क्वांटिटी में आता है। हमारा सी कैच क्रैब जो है वो कोरिया में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, चाइना में लाइक किया जाता है, थाईलैंड में जाता है, जापान भी जाता है। तो क्रैब जो है ना वो सी कैच क्रैब है हमारे पास जो है ना वो फार्मिंग क्रैब नहीं है। तो जो भी टोटल कैचिंग होती है वो सी से होती है क्रैब की। जी जी।
चीन की फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी मजबूत है। हम पाकिस्तान में भी कुछ तामुन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं, जैसा कि काश्त की तकनीक। हम अफजाइश के बीज और बुनियादी मवाद फराहम करते हैं ताकि वो बुनियादी पैदावार को पूरा कर सकें। चाहे इसकी अफजाइश हो या पकड़ी गई हो, ताजगी लोगों के लिए समुद्री ग़िज़ा के मयार की पैमाइश के लिए एक अहम मयार है। मछली पकड़ने के बाद झींगे, केकड़े और शेल फिश को आबी मसनूआत की मार्केट में मुंतकिल और तकसीम किया जाएगा। इसलिए मछली की ताजगी तशवीशनाक है। शिप बोर्ड रेफ्रिजरेशन की सहूलत माहिगीरों की तरफ से बहुत ज्यादा मुतवक्को है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, वो तो चल रहा है। हमारे इधर जो है ना, देखें, जब फ़िश को फ्रीज़ किया जाता है ना फैक्ट्रियों में, एक तो होती है ऑन बोर्ड फ्रीजिंग, यानी जो वेसल होते हैं दुनिया में, जो जदीद वेसल हैं, उनके अंदर जो है ना, कश्तियों के अंदर ही फ्रीजिंग प्लांट लगे होते हैं, ठीक है। वहीं पे वो पकड़ते हैं और वहीं पे फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे इधर ऐसा ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ना वो वेसल है हमारे पास, ना ऐसा ट्रेंड है, और ना हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस चीज़ को मेरे ख्याल में बर्दाश्त कर सकती है, जो हमारी माहीगीर इंडस्ट्री है। जहाज पर मुंजमद मछली को बराह रास्त बोर्ड पर प्रोसेस करना। अब मछली पकड़ने के बाद ताज़ा हालत में बहुत सी समुद्री ग़िज़ा पर फौरी तौर पर जहाज पर कार्रवाई की जाती है। कम से कम दर्जा हरारत पर मुंजमद होने के बाद समुद्री ग़िज़ा के मयार को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जा सकता है। इंजमात के बाद मछली एक ताज़ा जायका और मुकम्मल ग़िज़ाइयत पेश कर सकती है। अगर छोटी कश्तियाँ अपने मालिक के लिए ऐसा करें तो माहीगीरों के पास ऐसा सामान नहीं है। पहले मछेरे मछलियां पकड़ते थे और फिर इन्हें वापस लाकर बेच देते थे। अब किसी को इन्हें वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माहीगीर समंदर में मछली को इसी कीमत पर बेच सकता है जितनी जमीन पर या साहिल पर। कहने का मतलब है कि माहीगीर की कश्तियां बहरी जहाज पर खरीदने के लिए जमा होती हैं, जिनमें रेफ्रिजरेशन की सहूलत मौजूद होती है। ये समुद्री ग़िज़ा के मयार और ताजगी को यकीनी बनाने के लिए अहम कड़ी है। इस वक्त चीन और पाकिस्तान भी मुसलसल तलाश कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर के फ़रोग़ के तहत टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान के माहीगीरी के मंसूबों की तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक है। देखें उम्मीद यही है कि इस मुल्क अगर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो जिस मुल्क को तरक्की करेंगे तो उम्मीदें बहुत, वहाँ सेहत का मसला होगा, पानी का मसला होगा, यहाँ रोज़गार का मसला होगा, सारे लोगों को नौकरी मिलेंगे। ये तवक्कात तो हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है अगर ये मुल्क तरक्की करेंगे। हम तो अभी हमारे वक्त तो ख़त्म हो गया है, तो हमारे जनरेशन जो आइंदा नस्ल आ जाएंगे उनके लिए शायद बेहतर है। पाकिस्तान की दो बड़ी सनतें शहतूत, बांस और बैद मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और मौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। इन सनतों ने आलमी ताउन की तलाश के लिए एक मुनफरद राह दिखाई है। पहले जंगल दी शतूत दी छड़ियां दा बनदा सी, उस तो बाद हौली हौली मांग ज़्यादा हुई, शतूत दी छड़ियां, शतूत ख़त्म हो गया, यानी घट गया। तो उस तो बाद उन्हें नाल कुछ शतूत लै आंदे लोग, उंदियां बनांदे ने टोकरियां, ते कुछ नाल फालसे दा 4-5 साल तो 7 साल तो फालसे का भी काम है शुरू हो गया। फालसे जिहड़ियां टोकरियां ने डल्लां ने कमज़ोर होंदियां ने, ये थोड़ा चिर कटदियां ने, जिहड़ियां तूत दियां ने वो मजबूत होंदियां ने। ते इहदे बनदियां ने चीज़ां, डल बनदी, छाबा बनदा, वड्डा खांचा बनदा मुर्गियां वास्ते, उस तो भी ज़्यादा वड्डे वड्डे बनांदे ने, मतलब जिन्हां च बकरियां दे बच्चे वगैरह ताड़ तोड़ लैंदे। ते मंडियां वास्ते, टमाटर वास्ते, फल वास्ते सारा कुछ ये डल्लां बनदियां। जब बात शहतूत के दरख्त की हो तो लोग सबसे पहले शहतूत के पत्तों को रेशम के कीड़ों की बुनियादी खुराक समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा है। शहतूत के पत्ते रेशम के कीड़ों की खुराक का बुनियादी जरिया हैं। शहतूत की लकड़ी को बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहतूत की छाल को कागज बनाने के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और शहतूत का फल खाया जाता है। और शहतूत की छड़ियों को चीज़ें ज़ख़ीरा करने के लिए टोकरियां बनाकर मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जो छाबा ये तो मंडी के इस्तेमाल होंदा है। उस तो एक होर साइज़ दी हुंदी डल, वो टमाटर वास्ते इस्तेमाल होंदी। एक उस तो वड्डी डल होंदी, वो जम्मू वास्ते इस्तेमाल होंदी, कद्दू वास्ते इस्तेमाल होंदी। एक उस तो थोड़ा जिहा वड्डा साइज़ होंदा, वो छलियां वगैरह नहीं शहरों दे विच भुनदे, मकई दे पुट्टे उनदे विच इस्तेमाल होंदे, केरी कुरी पा के इस्तेमाल करते हैं। बाकी उस तो वड्डा गोल साइज़ होंदा, खांचा वगैरह बनाते हैं, वो
ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਟ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਝਾੜਦੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। शहतूत की छड़ियों से बनी टोकरियां और छांगा मांगा टाउन पंजाब के हुनरमंद कारीगरों के जरिए बनाई जाने वाली टोकरियां बढ़ते हुए कारोबार के साथ दूर दूर तक मशहूर हैं। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਰੀਕਲਚਰਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੜੀਆਂ, ਸ਼ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਛੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚੌਕ ਬਣਾਉਣਾ, 16 ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਛੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਬਰੀਕ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਲਸਾ ਵਗੈरह ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सेरीकल्चर इंडस्ट्री को बेहतर तौर पर तरक्की देने के लिए पंजाब के महकमा जंगलात के सेरीकल्चर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान में चीनी शहतूत के दरख्त मुतारफ कराए, जिससे मुकामी शहतूत के पत्तों के मयार को बेहतर बनाने और शहतूत की छड़ियों की कमी को दूर करने में मदद मिली। चीन से आने वाली शहतूत की इन इकसाम ने पाकिस्तान में बम्पर फसलें नहीं लाई हैं, बल्कि मजीद मुआशी फ़ायद भी हासिल किए हैं। ख़ास तौर पर यहाँ तक कि सर्दियों में चीनी शहतूत के दरख्तों के पत्ते और शाखें अभी तक नहीं गिरी हैं, जिससे पाकिस्तानी किसान साल भर पैसे कमा सकते हैं। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 800 900 800 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਲੇਟ ਆਇਆ ਲੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਹਦੀ 800-900 ਰੁਪਈਆ, ਕੁਝ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਲਓ ज़्यादा से ज़्यादा। पहले शहतूत के इलाकों में ज़ायाशुदा शहतूत की छड़ियों का इस्तेमाल हमेशा एक बड़ा मसला रहा है। शहतूत की छड़ियाँ हमेशा खेतों में छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि इनका मौसर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ रेशम के काश्तकारों ने इसे सिर्फ जला दिया, जिससे न सिर्फ माहौल आलूदा हुआ, बल्कि वसाइल भी ज़ाया हुए। टोकरियों में बुनकर ज़ायाशुदा शहतूत की छड़ियों को न सिर्फ दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ये जंगल के वसाइल का मुअस्सर मुतबादिल भी बन जाते हैं। दर हकीकत ये आम नहीं है कि शहतूत जैसे पौधों पर दोनों मुआशी असरात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, जबकि बांस इनमें से एक है। बांस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। मतालियात से पता चलता है कि बांस की सबसे ज़्यादा तरक्की की शरह हर 24 घंटे में 1.21 मीटर है। बांस बुनियादी तौर पर 2 से 3 माह में ऊंचा और मोटा हो सकता है। ये मालूम है कि दुनिया में 39 ममालिक हैं जिनका कुल रकबा 50 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा है। पाकिस्तान बांस के खाम माल का एक अहम बरामद कुनिंदा है और इसके बांस की सनत का मुस्तकबिल रोशन है। हमने पाकिस्तान में बांस की मुमकिना इस्तेदाद की तफसीली नुमाइश के साथ साथ इसकी कदर कीमत में मुमकिना इजाफे को भी देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बांस में इजाफे से ही फ़ायदा होगा। बांस की काश्त उस वक्त बढ़ेगी जब हमारे पास इसकी मजबूत वैल्यू चेन होगी। दूसरी सूरत में बांस की काश्त के लिए मजीद इलाकों को शामिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जून 24 को बैनुल-अक़वामी बांस और रतन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेश करदा बांस के साथ प्लास्टिक को तब्दील करने के इक़दाम को आलमी तरक्की पर आला सतही मुकालमे की कामयाबियों की फहरिस्त में शामिल किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने और आलमी पायदार तरक्की में किरदार अदा करने के लिए प्लास्टिक की आलूदगी को कम करना है। पाकिस्तान ने 2021 में बैनुल-अक़वामी बांस और रतन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की और आने वाले दिनों में इस इक़दाम को अमली तौर पर भी लागू करेगा। हमने पाकिस्तान में बांस पर एक वर्किंग ग्रुप कायम किया है। इस ग्रुप में उन तमाम स्टेक होल्डर्स को रुकनीत दी गई है
जो वफाकी सतह पर मौजूद हैं और जो बांस की काश्त के साथ साथ इसकी कदर कीमत में इजाफे की कोशिशों में भी शामिल हैं। चुनांचे इस ग्रुप की पहली मीटिंग में हमने उन्हें अमली तौर पर इस मीटिंग में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान में बांस के वसाइल को बेहतर बनाने के लिए हमें किस किस्म की मदद मिल सकती है, इसका जायज़ा लेना काफ़ी सूदमंद रहा। इस इजलास में ये भी फैसला किया गया कि पाकिस्तान में बांस के वसाइल में इजाफे के इम्कानात के साथ साथ बहुत अच्छे वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए तफसीली नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। बांस के इस्तेमाल की एक वसी रेंज है जिसके तमाम हिस्सों को बगैर किसी फजले के इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस की मसनूआत मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। इस वक्त बांस की 10,000 से ज़्यादा किस्म की मसनूआत तैयार की गई हैं, जिनमें कपड़े, खुराक, रिहाइश, नकलो हमल वगैरह शामिल हैं। डिस्पोजेबल दस्तरखान जैसे चाकू, कांटे और चम्मच, स्ट्राज, कप और प्लेट, घरेलू पायदार सामान और सनती मसनूआत जैसे बेम्बू ग्रिड पैकेजिंग और बेम्बू वेंडिंग, कंपोजिट पाइप, बांस की मसनूआत बहुत से शोबों में प्लास्टिक की मसनूआत की जगह ले सकती हैं। ताहम पाकिस्तान में बांस की सनत में तरक्की अब भी कम है। अगर मंडी में बांस की तलब ज़्यादा होगी तो इसकी काश्त बढ़ जाती है। अगर इसकी तलब कम या सुकड़ जाए तो किसान बांस की काश्त को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, इसका रकबा कम हो जाता है। ये वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका हमने बरसों सामना किया है। हमें बांस के लिए एक मुस्तकिल और पायदार वैल्यू चेन की ज़रूरत है ताकि मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में शामिल हों और बांस के वसाइल में इजाफा करें। जैसा कि बैनुल-अक़वामी बांस और रत्न ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह वाक़े है, चीन बांस के वसाइल और बांस के इस्तेमाल का एक बड़ा मुल्क है और वहाँ पर प्लास्टिक की जगह बांस में तेज़ी से तरक्की हो रही है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी को मुश्तरका तौर पर कम करने और आलमी ग्रीन तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन के साथ फ़ाल तौर पर तावन करेगा। लिहाजा चरागाहों में एक ऐसे मकाम का होना ज़रूरी है जहां चीनियों के साथ मज़ीद काम किया जाए, चूँकि हम पहले ही उनके साथ मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत कर चुके हैं और हम पाकिस्तान में बांस की काश्त के साथ साथ तवील मुद्दती वैल्यू चेन की तरक्की के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। तो यही वो मैदान है जहां हम इस पर काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि चीन जो बांस के शोबे की तरक्की के लिए बाकायदगी से तरबियती कोर्स मुनक्किद करता है। मैं ख़ुद 2007 में मुनक्किद किए गए एक कोर्स से मुस्तफ़ीद हुआ था। ये काफ़ी मुफीद था। मैं बांस के पैदावारी इलाके अंजी गया। मुझे अब भी याद है कि उनके पास बहुत अच्छी वैल्यू चेन है। हम अपने शोबे की तरक्की के लिए भी उनके तजर्बात से इस्तेफादा कर सकते हैं। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यही तक। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।